Okay, ready? Chalo. Okay, start. First thing is draw this thing. This is a resistance R. Fast करना है आज. This is AC source. Write AC source. Okay, AC source. We know that voltage supplied to an AC or EMF induced is given by E naught sine omega t. Okay, EMF induced. Now, when this passes current through the resistance, then the current is given by I equals to, achha, let me do this thing. I equals to voltage by resistance, because only resistance is there. So that is E naught sine omega t. मेरे साथ साथ लिखते रहो, डिवाइडेड बाय आर. हो गया. नाउ ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय आर, दैट मीन्स ऐसे सोचो तो ई नॉट बाय आर, ई नॉट बाय आर is maximum value of voltage divided by resistance. That is, we can write I equals to I naught. This value is I naught, maximum value of current, and sine omega t remains sine omega t. Now compare these two values. This is equation 1. We will be doing this all the time, and this is equation 2. We will be doing this all the time. All the time means 3 times only. This is the first time. Okay. So EMF and current given by these two equations in a resistance. So this circuit is called purely resistive circuit. What circuit? Purely resistive circuit. That means it contains only resistance and nothing but resistance. In this, if you remember a little bit of SHM, then remember phase difference between these two. That means look at here. Look at here, sine omega t. Okay, look at here, sine omega t. Sine of the angle is called phase. So phase omega t, phase omega t. What is the phase difference between the two? Phase difference, omega t minus omega t. Huh? 0. Okay. So write phase difference between current and EMF, that is voltage, is 0. Learning start हो गया अब से. So this is equation 1, this is equation 2, and this is a point to ponder, to remember. चलो हो गया first page ready. Okay, मेरे साथ साथ लिखो. चलो, let us go to next page. Next page is draw this thing. Say inductor. Array, we just did this. Inductor. Self inductance L. Okay, and there is a source of AC again. AC source again. AC source means what? EMF. EMF is given by, हम लोग सीखे हैं, maximum value of EMF, then sine omega t. Same thing. Write the same thing. Maximum value of EMF, sine omega t. Okay. What is the EMF developed at the 2 points, across the 2 points of a self inductor? हाँ, मैं जानता हूं तुम लोग बोलोगे माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट लेट अस कंसिडर द वैल्यू ओनली. इट इज एल डी आई बाई डी टी. देखो कर्शॉफ्स लॉ के अनुसार वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड, बट आई टेल यू अ सिंपल थिंग. वोल्टेज सप्लाइड इक्वल्स टू वोल्टेज स्पेंट. मैं एक आइडिया बताया था, वोल्टेज सप्लाई जितना करेंगे उतना वोल्टेज खर्चा होगा सर्किट में. खर्चा करने वाला कौन? इंडक्टर. सप्लाई करने वाला कौन? एसी सोर्स. दोनों को इक्वल कर देते हैं. चलो लेट अस इक्वेट देम. सो ई सप्लाइड बाय दिस एसी सोर्स इज द वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय दिस एल डी आई बाई डी टी. यहाँ पे साइन नहीं दिए. एक्चुअली ये ऐसा हुआ, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी एंड अक्रॉस अ क्लोज लूप इक्वल्स टू 0. उसको ना लिख के मैं क्या लिखा? E equals to L di by dt. Supply equals to खर्चा. Okay. From this हम लोग को निकालना क्या है पहले सोच लो. करने क्या जा रहा है? We are going to find I, current. Okay. So di को तो कम से कम अलग कर लूँ. di. तो ये di कितना आएगा यहाँ से? di. dt इस साइड आ जाएगा. L नीचे आ जाएगी. So it will become E divided by L
into dt. And from this ये e का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो इट विल बिकम e नॉट साइन ओमेगा टी dt, बिकॉज e का माने क्या है, e नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई l. Okay, getting it? Now if we want to find I, that would be nothing but integration of this di को इंटीग्रेट करेंगे I मिलेगा. चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं. इसमें से निर्दोष कौन कौन साबित हुए? निर्दोष, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट, सो वी डू नॉट टेक पार्ट इन इंटीग्रेशन. ई नॉट बाई एल, और बाकी इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा? साइन ओमेगा टी डी टी. तो साइन ओमेगा टी डी टी समझ लो कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी. तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा आएगा एक. तो डिवाइडेड बाय जो ओमेगा आया उसको मैं नीचे लिख दिया और ये कॉस ओमेगा टी हो गया. लेकिन इसका सामने एक माइनस आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी. नाउ ये लाइन को मैं यहां पे करता हूं. देखो चेंज होगा एक, देयर वुड बी अ चेंज. उस चेंज को याद रखने के लिए जिंदगी भर नहीं, कम से कम अप टू योर क्लास 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. इसको यहां पे लिखता हूं. सो आई इज गिवन बाय ई नॉट बाई एल ओमेगा, कैपिटल एल सेल्फ इंडक्टेंस याद करो, माइनस कॉस ओमेगा टी को ऐसे लिख दो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. कॉस ओमेगा टी क्या होता है? कॉस ओमेगा टी, इसको साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं भाई. कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी. नाउ माइनस कॉस ओमेगा टी था, सो आई कैन राइट माइनस ऑफ दिस रिजल्ट. सो माइनस ऑफ दिस रिजल्ट, अब माइनस साइन थीटा माने तो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसको उल्टा कर देता हूं, दैट इज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. बोलो ये पार्ट समझ में आया? कॉस ओमेगा टी अगर सिर्फ रहता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ओके, बट देयर इज नेगेटिव साइन, तो क्या किए, इसका सामने भी नेगेटिव डाल दिए. अब क्या किए, माइनस ऑफ साइन थीटा माना साइन माइनस थीटा, माइनस को ब्रैकेट का अंदर लेके गए तो ये उल्टा हो गया एंड इट बिकम्स ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू. तो ये अगर ऐसा है करंट और ये अगर ऐसा है वोल्टेज. नाउ लेट अस कम हियर, इसका फेज देखो, फेज साइन का बाद जो एंगल है दैट इज फेज ओमेगा टी. इसका फेज देखो ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ओमेगा टी से पाई बाई टू लेस है, कम, लेस वैल्यू. सो वी कैन से दैट फेज डिफरेंस, जैसे लास्ट बार लिखे थे, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, उसको क्या नाम दिए थे, फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री या तो पाई बाई टू. ये आइडिया आ गया. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, देखो साइन का बाद ओमेगा टी, साइन का बाद ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, डिफरेंस कितना, पाई बाई टू का. और बोलूं पाई बाई टू का अगर डिफरेंस है, किसका फेज कम हुआ थोड़ा और किसका फेज मोर, माइनस पाई बाई टू, तो इसका फेज पाई बाई टू लेस है. दैट मीन्स इसका रिस्पेक्ट में दिस हैज मोर फेज. कितना एक्स्ट्रा है ये, पाई बाई टू. मतलब वोल्टेज पाई बाई टू एक्स्ट्रा होता है फेज. इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वोल्टेज पाई बाई टू फेज आगे रहेगा. मतलब आज जो वोल्टेज सोचेगा, करंट वो पाई बाई टू टाइम, पाई बाई टू एंगल या तो फेज बाद सोचेगा. डू यू रिमेंबर लास्ट क्लास में मैं समझाया था पाई बाई टू ग्राफ में कैसे दिखाते हैं. ग्राफ में एक बार बता दे रहा हूं, देखो दोज हु मिस्ड यस्टरडेज क्लास, अगर मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ किया तो ये कंप्लीट साइकिल कितना हो जाता है, एंगल 2 पाई. हाफ साइकिल कितना हो जाता है, पाई. तो पाई बाई टू कितना, इतना. दैट इज हाफ ऑफ अ लूप होता है पाई बाई टू. दैट मीन्स जब वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू होगा वोल्टेज का, तब करंट का वैल्यू पाई बाई टू पीछे रहेगा. तो बोलो तो ये मैक्सिमम वैल्यू से पाई बाई टू अगर मैं पीछे चला गया, पाई बाई टू मतलब इतना, अगर पीछे आ गया इतना, तो मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, यहां पे. दैट मीन्स व्हेन वोल्टेज का वैल्यू मैक्सिमम,
तब करंट का वैल्यू मैक्सिमम नहीं हुआ, वो π/2 बाद मैक्सिमम होगा, तो हम लोग बोलेंगे करंट पीछे रह गया, लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज। तो इसको क्या बोलेंगे, सपोज ये वोल्टेज का ग्राफ है, वोल्टेज का ग्राफ है, और ऐसे करंट का ग्राफ अगर ड्रॉ कर दिया तो कैसा माने होगा, देखो करंट का ग्राफ ड्रॉ करने से कैसा माने होगा, वो ऐसा होगा। मान लो करंट का ग्राफ ये येलो कलर है, अभी जो ड्रॉ किया हुआ करंट का ग्राफ, तो वोल्टेज का ग्राफ कैसा होगा, वो π/2 आगे रहेगा। दैट मीन्स जब करंट 0 था तब वोल्टेज ऑलरेडी मैक्सिमम बन चुका है। अब जब करंट मैक्सिमम बना तब वोल्टेज 0 बनेगा। अब जब करंट 0 बना तब वोल्टेज मैक्सिमम बनेगा। जब करंट मैक्सिमम बना, देखो करंट 0 तो वोल्टेज मैक्सिमम। अब जब वोल्टेज 0 बनेगा, करंट अभी भी मैक्सिमम में है पर नेगेटिव साइड में, मतलब करंट को 0 बनने में पिंक कलर का ग्राफ किसका है, वोल्टेज का। मतलब वोल्टेज अब 0 है, करंट क्या 0 है, नहीं, करंट तो येलो ग्राफ है, करंट नीचे है अभी नेगेटिव मैक्सिमम में, वोल्टेज ऑलरेडी 0 हो चुका है। इफ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हियर, तो करंट भी 0 बना है, देखो येलो ग्राफ ऑल्सो हैज बिकम 0, बट इतना टाइम बाद वो 0 बना, तो इससे इतना कितना एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है, हाफ ऑफ अ लूप, माने ऐसे, मतलब हाफ ऑफ अ लूप माने कितना डिफरेंस होता है फेज का, π/2। एक लूप माने कितना फेज का डिफरेंस, 1 लूप माने फेज डिफरेंस को, तो दिस इज 1 लूप, 0 और ये कितना हो जाता है पाई। अगर 2 लूप्स होता है, फेज का कितना डिफरेंस होता है, 2 लूप्स, पाई और पाई कितना हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 लूप्स माना कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल माना घड़ी का सुई पूरा घूम के वापस आ गया, 2 पाई। दैट मीन्स कंप्लीट फेज 2 पाई, कंप्लीट साइकिल 2 पाई, वन कंप्लीट साइकिल का हाफ साइकिल माने घड़ी का कांटा ऐसे घूमा 180 डिग्री, 180 डिग्री माने पाई। 90 डिग्री कब होता है, 90 डिग्री, इफ this arm of the clock turns by 90 degree to this position 1 to 2, 90 degree, then what time passes or what portion, what part of the complete cycle has taken place, only 1/4 होता है ना। ये पूरा साइकिल का या तो सर्कल का कितना हिस्सा है, दिस शेडेड पार्ट 1/4 ऑफ द कंप्लीट सर्कल। सिमिलरली π/2 होगा 1/4 ऑफ द टोटल साइकिल माने प्लस और माइनस मिला के 2 पाई तक, तो इसका 1/4 माने कितना होगा, इतना। सो ये फेज डिफरेंस होता है π/2 का, कितना, हाफ ऑफ अ लूप और 1/4 ऑफ द कंप्लीट साइकिल, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, अब इसका बाद वोल्टेज तो अब मैक्सिमम हुआ, करंट अभी कितना, येलो ग्राफ 0, अब करंट भी मैक्सिमम होगा, लेकिन वोल्टेज जब मैक्सिमम हो चुका है, देखो पिंक ग्राफ यहां पे चला गया मैक्सिमम, करंट कितना, येलो ग्राफ 0, एक्स एक्सिस को टच करके, ओके। अब करंट भी मैक्सिमम बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनेगा, और π/2 जाने का बाद बनेगा यहां पे, लेकिन तब तक वोल्टेज वेट करेगा क्या, नहीं, वोल्टेज तब तक 0 बन चुका है, करंट भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, लेकिन और π/2 जाने का बाद ये 0 बनेगा। दैट मीन्स वोल्टेज हमेशा आगे रहेगा करंट से, वोल्टेज जो करते करते जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम 0, नेगेटिव मैक्सिमम 0, करंट वही फॉलो करेगा, क्योंकि दोनों ही साइन का ग्राफ है, सेम थिंग्स विल बी फॉलोड, बट आफ्टर सम टाइम थोड़ा पीछे रहेगा, आफ्टर सम एंगल ऑल्सो, उस एंगल को बोलते हैं फेज डिफरेंस। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए क्या हुआ था, रेजिस्टेंस फेज डिफरेंस हुआ 0, दैट मीन्स जब करंट मैक्सिमम तब वोल्टेज भी मैक्सिमम, और जब करंट 0 वोल्टेज भी 0, दोनों एक ही साथ सेम वैल्यूज पोजेस करेगा, सेम वैल्यूज मतलब फेज पोजेस करेगा, मतलब वोल्टेज जब मैक्सिमम तब करंट भी मैक्सिमम, अब दोनों का मैक्सिमम वैल्यूज विल बी डिफरेंट, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, बट जब ये मैक्सिमम, सेम टाइम में वोल्टेज भी मैक्सिमम,
लेकिन इसमें क्या हो गया, इंडक्टर में ये देखो लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन आई करंट एंड ई वोल्टेज इज 90 डिग्री। दैट मीन्स दोनों एक साथ मैक्सिमम एक साथ मिनिमम नहीं होगा। दैट इज इट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, इसको रहने दो, फिर से वापस आएंगे इसमें, विल बी बैक टू दिस, वेट कर भाई, आ रहे हैं। देन लेट अस ड्रॉ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अच्छा, लास्ट सर्किट जो था वो क्या था, लास्ट सर्किट दिस वन, ये था प्योरली इंडक्टिव सर्किट। दैट मीन्स व्हाट, सिर्फ इंडक्टर है, एसी सोर्स है और कोई नहीं है, ना रेजिस्टेंस ना कैपेसिटर। उसका पिछला वाला सर्किट क्या था, ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था। इसमें कौन था, सिर्फ रेजिस्टर, ना कैपेसिटर ना इंडक्टर। तो अब क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू व्हाट नाउ, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। इसका मान है सिर्फ कैपेसिटर रहेगा और कोई नहीं रहेगा, और एसी सोर्स, एसी सोर्स, इसको लिखो एसी सोर्स, एंड राइट दिस इक्वेशन, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो हमेशा लिखते आ रहे हैं। ओके, अच्छा ये बता दो, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर। कैपेसिटर का दोनों एंड में पोटेंशियल डिफरेंस भी एर फॉर्मूला किया हुआ, वेरी गुड। V जो होता है ना, V, ये V अक्रॉस अ कैपेसिटर C कितना होता है, V इक्वल्स टू Q बाई C। दिस इज द वोल्टेज, Q बाई C। ओके, अब फिर से वही आइडिया, लेंस लॉ लगाने की जरूरत नहीं, क्या सिंपल करके करो, कैसे, वोल्टेज सप्लाइड, वोल्टेज खर्चा, वोल्टेज सप्लाइड इज हाउ मच, दिस एसी वोल्टेज, वोल्टेज खर्चा कितना, Q बाई सी। सो Q बाई सी इक्वल्स टू E, E माने E नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, साइन ओमेगा टी तो लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचो, एट दिस लाइन एक चीज सोचना है हम लोगों को, क्या वो है कि हम लोगों को करना क्या है, वी हैव टू फाइंड करंट, और है क्या हाथ में, चार्ज। चार्ज से करंट कैसे मिलता है, प्लीज टेल मी, चार्ज से कैसे करंट मिलता है, हाउ टू फाइंड करंट इफ यू नो चार्ज। Now you know Q, now how to find I from Q? Q मिला हुआ है, I कैसे मिलेगा, देखो ऐसे मिलता है, क्यों, rate of flow of charge is current, so dq by dt। let us differentiate this equation to find current। तो equals to, चलो उसको differentiate करता हूं, E नॉट कांस्टेंट, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट बाहर आएगा एंड साइन बिकम्स कॉस, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख दो तो, ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय सी ओमेगा। ये क्या हो गया, 1 बाय सी ओमेगा, भाई रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। मैं अगर ऐसे लिख दिया 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5, इसका माने कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 5, इसका माने कितना, 5। एक ही तो बात है। सिमिलरली हम लोग क्या लिखें कि E नॉट इंटू सी ओमेगा, देखो E नॉट इंटू सी ओमेगा, इसको मैं क्या लिख दिया, E नॉट डिवाइडेड बाय फिर 1 बाय फिर सी ओमेगा, तो इज इज सेम एज E नॉट इंटू सी ओमेगा। चलो अब बारी है कॉस ओमेगा टी की, तो कॉस ओमेगा टी को साइन में चेंज करना है, कॉस ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। नोटिस करो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2
किसका घर है ये? पाई बाई टू प्लस करने से किसका घर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज साइन का घर, तो वो तो प्लस ही रहेगा. दैट मीन्स दिस इज कॉस ओमेगा टी. ओके, ये करेक्ट है. सो इसका नीचे लिख देता हूं मैं, करंट बस हो गया. दैट इज द लास्ट लाइन. सो आई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू सी ओमेगा. नहीं लिखूंगा ई नॉट इंटू सी ओमेगा. उसको क्या करूंगा? ई नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग करूंगा. क्यों करूंगा? आई एम टेलिंग यू व्हाई आई एम डूइंग दिस. ई नॉट बाय 1 बाय सी ओमेगा into what we got now, sine omega t plus pi by 2. इसको लिखो करंट. तो ये रहा इक्वेशन 1 वोल्टेज का, और ये रहा इक्वेशन 2 करंट की. वोल्टेज एंड करंट अगेन वी गॉट. सो वी डिस्कस 3 सर्किट्स which contains purely रेजिस्टेंस, नहीं तो प्योरली कैपेसिटेंस, नहीं तो प्योरली इंडक्टर. अब कैपेसिटेंस का बात देख रहे हैं. अरे ये कैपेसिटेंस भी तो वही कर रहा है. क्या कर रहा है कि साइन का फेज देखो, साइन ए फेज ओमेगा टी, और यहां पे साइन का फेज देखो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. दैट मीन्स यहां पे फिर से दोनों का फेज डिफरेंस, यहां पे लिखता हूं मैं, दोनों का फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई बाई 2. क्या मैं ये पूछ सकता हूं, इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, बोलो तो who leads and who lags? Can you answer that? Current lead कर रहा है ना lag कर रहा है? Current leads, right answer. Yes, current leads because current का sign omega t है and it is also plus pi by 2. That means it is leading. That means now current जो करेगा maximum value 0, negative maximum 0, voltage भी वो करेगा. Voltage will do the same thing, possess the same stages after a phase of pi by 2. Pi by 2 बाद करेगा. Current अब सामने, voltage पीछे माने lagging. So we can write in other words that voltage lags current by pi by 2. These are the short questions that we are discussing here. These are the short questions. लिख के रखो. These are the short questions. Voltage lags current by pi by 2. Okay, इतना तो सीख लिया. Now let us understand this thing. Phasor diagram. Phasor diagram is all about rotating vectors. ऐसा फास्ट बार सुन रहा हूं. रोटेटिंग वेक्टर्स क्या है भाई? वेक्टर जो रोटेट कर रहा है. यस, राइट आंसर. वेक्टर्स व्हिच आर रोटेटिंग. यहां पे रोटेटिंग वेक्टर्स किसको बोला जाएगा? रोटेटिंग वेक्टर्स भाई पढ़ क्या रहे हैं? करंट, वोल्टेज. यस, वोल्टेज इज अ रोटेटिंग वेक्टर, करंट इज अ रोटेटिंग वेक्टर. दीज टू आर रोटेटिंग वेक्टर्स. दैट मीन्स माने थोड़ा सा समझ लेते हैं. चलो माना समझ लेते हैं. रोटेटिंग वेक्टर्स आर लाइक दिस. सपोज दिस इज अ स्क्रीन. ऐसा स्क्रीन है. सपोज दिस इज अ स्टिक. मान लो ये एक रॉड है ऐसा रखा हुआ. एंड सपोज वी आर इंसिडेंटिंग लाइट फ्रॉम अ बिग टॉर्च. यहां से लाइट आ रहा है. ये स्टिक है और ये पर्दा है. Now can you understand that there will be a shadow created on the screen and that shadow is called projection. इसका एक shadow आएगा स्क्रीन के ऊपर इतना. That means इसका shadow इतना होगा. Sorry. अच्छा, so if this becomes like this, इसका सिर्फ वैल्यू सेम रखे, लेंथ सेम है, बट एंगल थोड़ा नीचे कर दिया. अब इसका शैडो इतना हो जाएगा, ओनली दिस मच. इसको सुला दिया ऐसे स्ट्रेट, तो इसका शैडो भाई इट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो इसका शैडो एक पिन पॉइंट हो जाएगा यहीं पे. बट इफ यू मेक इट स्ट्रेट, इसको घुमाते घुमाते ऐसे किए, शैडो का लेंथ बढ़ रहा है फ्रॉम पिन, माना सिंगल पॉइंट टू दिस लेंथ, ऐसे करके देखो शैडो का लेंथ बढ़ रहा है धीरे धीरे. व्हेन दिस
घूमते घूमते यहां पे आ जाएगा। तो अब द स्टिक वुड बी लाइक दिस, और इसका शैडो वही होगा पूरा का पूरा लेंथ। अब इस स्टिक का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर बोलूं, तो व्हाट वुड बी दिस हाइट व्हेन इट रोटेट्स टू द वर्टिकल पोजीशन? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, व्हाट वुड बी दिस वैल्यू? मे बी 8 सेंटीमीटर, मे बी, मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल, this may be 5 centimeter, it would be 0 centimeter when it is laid straight. अब सिर्फ मैं इसको चेंज कर देता हूं, किसको? ये सेंटीमीटर को चेंज करके if I write 10 volt, so this is 5 volt, this is 8 volt, this is 10 volt. तो क्या देख रहे हो? इसका माथा में अगर मैं एक एरो डाल दूं, it becomes a vector. तो क्या समझ रहे हो? इफ अ वेक्टर रोटेट्स लाइक दिस, तो इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, प्रोजेक्शन माने शैडो जैसा सोच लो, इट्स प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस ग्रेजुअली गोज ऑन इंक्रीजिंग। इतना लेंथ, जीरो लेंथ, इतना लेंथ, प्रोजेक्शन बढ़ गया, इतना इतना लेंथ, प्रोजेक्शन और बढ़ गया, सीधा मैक्सिमम प्रोजेक्शन, फुल वैल्यू। फिर से इफ इट रोटेट्स लाइक दिस, दिस, this and this and this, ऐसे ही अगर घूमता ही जाएगा गोल, तब क्या होगा? as it goes on rotating, its length of the y-axis projection from zero starts increasing maximum, फिर इधर जब नीचे जाएगा डिक्रीजिंग, अब जीरो, नेगेटिव में अब मैक्सिमम, इफ इट फर्दर रोटेट्स अब फिर से जीरो, and if it further rotates, फिर से बढ़ते बढ़ते maximum. Oh, so if it goes on rotating like this, if a vector, if we consider voltage to be a vector which is rotating like this, then as it moves up, its projection value goes on increasing, projected value becomes maximum when the angle is 90 degree. Angle 90 degree. So every time it rotates, इसका value goes on changing. ऐसा वेक्टर को ऐसा करके अगर वेक्टर सोचेंगे ईएमएफ को, दैट इज वोल्टेज को, सो इट वुड बी कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर। और रोटेटिंग वेक्टर का द एंगल दैट इट मेक्स, द एंगल दैट इट मेक्स, मान लो ये वोल्टेज को ड्रॉ किए, नाउ द एंगल दैट इट मेक्स विथ एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे इसका फेज। ये फेज अगर ओमेगा स्पीड से घूम रहा है और टी सेकेंड तक घुमा है, suppose a particle is moving with an angular speed omega and it rotates for a time t, then what angle does it make? Theta equals to omega t. That means it will be having already made an angle omega t. So this is called phase, which is called omega t. Now there comes current. Now there comes current. अगर मान लो if I draw current with some other color, say green color. नाउ करंट अगर यहां पे है, देखो यहां पे करंट, करंट वोल्टेज का नीचे है, नीचे, नीचे माने लैगिंग, करंट लैग्स। लेकिन यही करंट अगर ऊपर होता ऐसे, तो इसको बोलेंगे करंट इज लीडिंग। तो आइडिया क्या हुआ? आउट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, लेट अस कंसिडर वन ऑफ देम टू बी एट अ सर्टेन पोजीशन, ऐसा करके। इफ अनदर, अगर मान लो इसको करंट ले लिए, तो अगर वोल्टेज जो है सेकेंड वन, इफ दैट इज अबव इट, तो बोलेंगे लीड कर रहा है, लीड। बट इफ इट फॉल्स बिलो इट, तो बोलेंगे भाई ये तो लैग कर रहा है, पीछे है। तो नीचे माने पीछे और ऊपर माने लीडिंग। सो इफ वी ड्रॉ अ फ्रेश ग्राफ लाइक दिस, कि ये एक फ्रेश ग्राफ है, ये देख के बताना कि कैसा कैसा वैल्यू में लिख रहा हूं, कि दिस इज करंट एंड दिस इज वोल्टेज। तो इसमें बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज? लेट मी सी हाउ मच यू अंडरस्टूड। अरे वाह, तो इसमें फेज डिफरेंस जीरो।
अब बताओ करंट यही रहा, सिर्फ वोल्टेज ऐसा हो गया, द वोल्टेज बिकम्स लाइक दिस। अब बताओ करंट एंड वोल्टेज में से, अच्छा बोलो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन दिस केस, करंट एंड वोल्टेज पाई बाय 2। और बताओ हु लीड्स हु लैग्स, लीड कौन कर रहा है, करंट और वोल्टेज में से? हाँ, voltage leads, very good, voltage leads, and leads by what angle? This voltage leads by current by what angle? Pi by 2, because this is x axis, this is y axis, pi by 2। ओके, अच्छा मैं अगर वोल्टेज को इधर ड्रॉ कर लिया, अब बताओ करंट वही है एक्स एक्सिस में, नाउ द वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2 कि लैग्स करंट बाय पाई बाय 2? लैग्स करंट बाय पाई बाय 2, एकदम करेक्ट आंसर, राइट आंसर। सो इफ आई नाउ जस्ट प्लेस सम सफिक्सेस, सफिक्स कैसे देखोगे, ये रहा करंट भाई साहब, ये हम लोगों का रेफरेंस फ्रेम है, क्या रेफरेंस फ्रेम, दैट मींस व्हाट, करंट को हम लोग ऑलवेज एक्स एक्सिस में ड्रॉ करेंगे, भले बुक में कैसे दिया हो, ऐसा करना देखना बहुत इजी होगा। करंट ऑलवेज प्लेस करना है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। अगर मैं इसका सफिक्स सिर्फ चेंज कर दूं, चेंज नहीं ऐड कर रहा हूं, इसका सफिक्स मैं लिख दिया ई सफिक्स आर, दैट मींस दिस इज द वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द रेजिस्टर। तो बताओ व्हाट वाज द फेज डिफरेंस बिटवीन प्योर रेजिस्टर एंड करंट, सॉरी प्योर रेजिस्टर्स का वोल्टेज एंड करंट, रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट, इसमें फेज डिफरेंस कितना था, 0 डिग्री, 0 डिग्री। देखोगे, ये देखो ऑलरेडी डन इट, साइन ओमेगा टी, ये भी कितना घुमा है, ओमेगा टी, फेज डिफरेंस 0। अच्छा दैट मीन्स ये दिस एंगल, दिस वोल्टेज इज रेजिस्टिव वोल्टेज, ये इसका सफिक्स में एल लिख दिया, एल माने इंडक्टर, तो ईएमएफ अपीयरिंग अक्रॉस एन इंडक्टर ई एल लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, दैट मींस करंट पीछे रह गया, करंट का रेस्पेक्ट में करो इजी होगा, करंट तो एक्स एक्सिस, तो ईएमएफ फॉर एन इंडक्टर लीड्स करंट, ऊपर है देखो, लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। देखता हूं तो चेक करके, इंडक्टर कहां गया, इंडक्टर बाय कहां हो, मैं तो यहां हूं, ए तो आ गया। करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, whereas voltage has a phase omega t, the current is pi by 2 lagging, so voltage is pi by 2 leading। ये तो लिखा हुआ है, ये देखो EMF leads current by pi by 2, देखते हैं तो चेक करके, हाँ EMF leads current, करंट से ऊपर है पाई बाय 2, ओके। इसका फिर क्या होगा, व्हाट वोल्टेज दिस कैपिटली सजेस्ट, दिस वन वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस अ कैपेसिटर, ये कितना EC, देखते हैं तो कैपेसिटर कहां गया, हाजिर हो, हाजिर। कैपेसिटर हैज गॉट इट्स EMF with a phase omega t after any time t, but current has a phase given by omega t plus pi by 2। अच्छा करंट के लिए प्लस है तो करंट इज लीडिंग, दैट मीन्स वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड बाय पाई बाय 2, समझ रहे हो, तो वोल्टेज में सिर्फ ओमेगा टी है पर करंट में ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, सो करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, वही लिखा हुआ था यहां पे, वोल्टेज लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। देखता हूं तो वोल्टेज कैसे लैग कर रहा है, हाँ लैग कर रहा है, क्यों, नीचे, मैं बोला था नीचे माने पीछे, दैट मीन्स लैगिंग, सो करंट से नीचे है, दैट मीन्स दिस इज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय दिस एंगल इज ऑल्सो पाई बाय 2, ओके। सो आई एम राइटिंग हियर पाई बाय 2, सो दिस डायग्राम इज द फेजर डायग्राम। क्यों नाम हुआ ऐसा फेजर डायग्राम, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स फेज, किसका,
वोल्टेजेस का विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू करंट। करंट का रिस्पेक्ट में, करंट का जिंदगी भर का साथी रेजिस्टिव ईएमएफ, दैट मींस ईएमएफ अपीयरिंग अक्रॉस द रेजिस्टेंस, जिंदगी भर साथ निभाएगा। देखो फेज 0 डिग्री, थोड़ा घमंडी टाइप का। ईएल इंडक्टर, थोड़ा अहंकारी है कि भाई मैं तो ऊपर रहूंगा, 90 डिग्री लीडिंग। और दीन दुखी बेचारा कैपेसिटर, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से π/2 लैगिंग। सो विद दिस डायग्राम, देख लो एक बार डायग्राम को, मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूं एंड थोड़ा छोटा भी कर देता हूं। अब इसको साइड में कर दिया। नाउ कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दिस वेक्टर रिजल्टेंट, उसीलिए बोले थे इसको वेक्टर, बिकॉज वी आर गोइंग टू गिव इन अ ट्रीटमेंट जो कि हीरोइक नहीं, वेक्टर ट्रीटमेंट है। कैसे? देखो वेक्टर डायग्राम में वी नो दैट ओनली सिमिलर वेक्टर्स आर ड्रॉन। वेलोसिटी का साथ एक्सीलरेशन नहीं होगा, वेलोसिटी का साथ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। वोल्टेज का साथ भी सिर्फ वोल्टेज ही ड्रॉ करेंगे। तो एक्स एक्सिस में ऐसा कौन सा वोल्टेज है आउट ऑफ दिस थ्री, व्हिच वोल्टेज? ER। अच्छा, लॉ ऑफ ट्रायंगल याद है वेक्टर एडिशन का, वन वेक्टर एंड्स एंड द सेकेंड वेक्टर स्टार्ट्स। यहां पे तो एक वेक्टर खत्म हुआ, कौन? ER, ये रेजिस्टेंस का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा। अब एक वेक्टर खत्म हुआ। एक बार नोटिस करके देखो तो, टू वेक्टर्स EL एंड EC आर ऑपोजिट, आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट वैल्यू इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन? A माइनस B। तो यहां पे ऊपर में कौन है? EL, नीचे कौन है? EC। सो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? EL माइनस EC। तो अब दो वेक्टर हो गया, एक्चुअली तीन था। एक्स एक्सिस को वी हैव ड्रॉन इट अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में दो था, एक ऊपर एक नीचे। तो रिजल्टेंट निकाल लिए बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अदर। तो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इतना हुआ, EL माइनस EC। नाउ तुम्हारा दिमाग में ये चल रहा है कि अच्छा ये अगर EC माइनस EL हुआ तो इफ EC इज ग्रेटर देन, कोई बात नहीं, दिस एरो विल बिकम दिस एरो, नीचे आ जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा डायरेक्शन। वी आर एज्यूमिंग हियर दैट EL ग्रेटर देन EC। बस जैसा होगा वैल्यू ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिलहाल विद दीज टू बताओ रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? टू वेक्टर्स का रिजल्टेंट। क्या फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट नहीं सीखे थे? रिजल्टेंट फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, सीधा ड्रॉ। दिस वुड बी द रिजल्टेंट वोल्टेज। उसको क्या बोलेंगे? ओनली E, ना ER, ना EL, ना EC। तीन वोल्टेजेस है यहां पे, इसको बोलेंगे ओनली E। ये तो हो गया। रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा? एंगल चाहिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाई। फाई तो करंट का साथ वोल्टेज का फेज डिफरेंस को फाई बोलते थे, यहां पे भी तो वही है। कैसे? ER कौन सा एक्सिस में है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में किसको लिया गया है? करंट। और ये कौन है? वेक्टर E। वेक्टर का एरो मत देना, हाँ, जस्ट रोटेटिंग वेक्टर है ना, उसलिए एरो मत देना। E जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट का साथ तो फाई एंगल ही बना रहा है अल्टीमेटली। दैट मीन्स क्या? देखो करंट अलोंग एक्स एक्सिस ले लिए, अब थ्री वेक्टर्स आर एक्टिंग टुगेदर साइमल्टेनियसली। ना ये तीनों का जो नेट रिजल्ट होगा उस वोल्टेज का साथ करंट का एंगल को बोलेंगे फाई, फेज डिफरेंस। हाउ टू फाइंड दैट नेट रिजल्टेंट वोल्टेज? उसके लिए वेक्टर का आइडिया लगा। एंड वी फाउंड फ्रॉम दिस अप्लाइंग लॉ ऑफ ट्रायंगल कि रिजल्टेंट वोल्टेज EA होगा। और करंट ऑलवेज किधर लेने बोला था मैं? एक्स एक्सिस में। तो हो गया ना, ये दोनों का एंगल फाई। तो फाई इज द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस किसका किसका? बिटवीन रिजल्टेंट EMF E एंड जो करंट जा रहा है I। दिस इज द आइडिया। लेकिन इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा। क्या? रिजल्टेंट इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स, तो रिजल्टेंट कितना होता है? √A² + B²। ये तो है एक वेक्टर ER,
ये तो है दूसरा फैक्टर ई एल माइनस ई सी, तो ये दोनों का रिजल्टेंट ई कितना हो जाएगा, रूट ओवर ई आर स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ई सी का होल स्क्वायर। बस ये हो गया, फॉर्मूला मिला एक। कौन सा फॉर्मूला है, तो सिंपल सा बात है, सिंपल है बट यू नीड टू रिमेंबर दिस। चलो मेरे साथ साथ ना ये सर्किट को ड्रॉ करो। ये सर्किट कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एल सी आर सीरीज सर्किट, बिकॉज वी डोंट हैव LCR पैरेलल सर्किट इन आवर सिलेबस। बच गए। सो LCR सीरीज सर्किट में ऐसे जस्ट ड्रॉ करो, एक इंडक्टर L, एक कैपेसिटर C और एक रेजिस्टेंस R। दिस इज कॉल्ड LCR सर्किट। तीनों को ही सीरीज में लगा दिया हुआ एंड ड्रॉ AC सोर्स, ड्रॉ AC सोर्स। AC सोर्स का EMF कैसे लिखते हैं हम लोग, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। तो नाउ विल बी बैक टू दिस, विल बी बैक टू दिस। इसके लिए एक पूरा पेज जैसा स्पेस छोड़ दो कॉपी में, विल बी बैक टू दिस। इससे पहले ना कुछ हिसाब बाकी है, चलो उसको करते हैं। एक पेज छोड़ के रखो एंड देन स्टार्ट फ्रॉम हियर। एक पेज छोड़ के रखो, मैं भी एक पेज छोड़ देता हूं। लो नेक्स्ट पेज, इसमें क्या करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज में चलो, इसमें क्या करेंगे, वी विल बी राइटिंग फॉर्मूलाज हियर फॉर रिवीजन एंड लर्निंग एंड अनदर थिंग। क्या, यू टेल मी व्हाट केम आउट व्हेन वी फाउंड I equals to I naught sin omega t। ये I equals to I naught sin omega t यहां से आया था, डू यू रिमेंबर दैट? voltage by resistance, from this we got this, because E naught by R को करंट I naught बोले थे। ओके चलो फिर से लिखो। मैं चाहता तो लास्ट पेजेस में जा के इसको समझा सकता था, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस। बार बार देखोगे याद रहेगा। कैसे देखो, दिस इज फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नाउ टेल मी व्हाट वी फाउंड फॉर प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें I कितना आया था, द वैल्यू ऑफ I इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इसमें आया था E नॉट, फिर नीचे ठीक से बोलो, E नॉट डिवाइडेड बाय L ओमेगा, डिड यू से L ओमेगा, ये ठीक है, E नॉट डिवाइडेड बाय L ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी देन minus pi by 2, right? And finally, for purely capacitive circuit, I was given by E naught divided by, then what? 1 by C omega. That's why I was saying this. 1 by C omega, यही बोल रहा था, into साइन का क्या लिखूं, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आफ्टर राइटिंग ऑल दिस थ्री, आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझो, वोल्टेज का नीचे जो रहेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसको बोलेंगे, वोल्टेज का नीचे जो रहेगा उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस।
ई नॉट बाय आर है तो आर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस. इफ सिमिलरली वी कंपेयर दीज इक्वेशंस, इसका वोल्टेज का नीचे कौन है, इसका वोल्टेज का नीचे कौन है, तो दीज आर ऑल्सो रेजिस्टेंसेस. क्योंकि वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस का यूनिट डायमेंशन बैठाएंगे, देन ओनली वी गेट द डायमेंशन ऑफ करंट. तो इसका भी वोल्टेज का नीचे कुछ है, तो दिस शुड ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस. यस, तो एल ओमेगा इसका यूनिट क्या होगा, ओम. 1/c ओमेगा इसका यूनिट क्या होगा, ओम. दैट मीन्स दीज आर रेजिस्टेंसेस फॉर श्योर. सिर्फ इन लोगों को खराब लगता है कि हम लोग कैपेसिटर है, इंडक्टर है, थोड़ा तो सम्मान दिया करो भाई. तो चलो दे दिए सम्मान. तो यू आर रेजिस्टेंस, ओके, बट तुम्हारा नाम थोड़ा सा डिग्निफाइड कर देता हूं. कैसे, ये नाम दिया जाओ आज से, करंट जाने से ये रिएक्ट करेगा. कैसे, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये रोकेगा करंट को. याद आ रहा है. तो इसलिए इसको नाम दे दिए रेजिस्टेंस ही है, पर बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज नॉट ऑफर्ड बाय अ प्योर रेजिस्टर आर, कोई और है कौन, इंडक्टर, इसलिए उस रेजिस्टेंस का जिसका यूनिट भी सेम ही है रेजिस्टेंस का, ओम, सिर्फ नाम उसका दे देंगे रिएक्टेंस. जब फुटबॉल खेल हो रहा है एंड समवन जो कि गोल को रोक रहा है पोस्ट का नीचे खड़ा होकर, उसका स्पेशल नाम दे दिए गोलकीपर. वैसे इसका भी स्पेशल नाम क्या हो गया, रिएक्टेंस. अब ये दोनों में फिर से झमेला. बोला भाई मैं भी रिएक्टेंस हूं, तू भी रिएक्टेंस है, तो हम दोनों में फर्क क्या है फिर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस. तो इसको बोले कि भाई झगड़ा मत करो, तुम इंडक्टर हो तो, बोला हाँ, तो तुमको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और तुम कैपेसिटर हो तो, बोला हाँ, तो तुमको आज से बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दोनों में झगड़ा बंद हो गया. दे बिकेम फ्रेंड फॉर एवर आफ्टर एंड लिव्ड हैप्पीली. ये स्टोरी था. तो स्टोरी इजी था. नाउ नाम को याद रखो, एल ओमेगा इज रिएक्टेंस, दैट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू करंट, कि करंट जाने नहीं देंगे. कितना नहीं दोगे करंट जाने, एल ओमेगा. और अगर कैपेसिटर लगा दिए तो वो भी करंट को रोकेगा, तो उसका रिएक्टेंस माने रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ, वो कितना होगा, 1/c ओमेगा. नाउ x स्टैंड्स फॉर रिएक्टेंस, जैसे r स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, तो x को बोलेंगे रिएक्टेंस. अब आगे जाके दो तरह का x मिलेगा अभी हम लोगों को, क्या, XL इसको बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XC इसको बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस. दोनों क्लियर हुआ. इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा, XL. ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, XC. XL का वैल्यू कितना आया था, XC का वैल्यू कितना आया था, नोटिस करके देखो. अब लास्ट पेज में फिर से चलता हूं. यही था ना XL, कितना, L ओमेगा. सो XL का जगह में लिखो L ओमेगा, और इसका बदले में लिखो L इंटू 2πn, बिकॉज ओमेगा इज 2πn. n स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी. ओके. सिमिलरली XC आया था 1/c ओमेगा. दिस स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस अगेन. अच्छा याद रखना, अगर तुमको बोलेगा ना फाइंड द डायमेंशंस ऑफ 1/L इंटू ओमेगा, सॉरी 1/c इंटू ओमेगा, तो जान लेना वो रेजिस्टेंस का ही डायमेंशन है. तो एनीवे, तो 1/c ओमेगा इक्वल्स टू 1/c इंटू ओमेगा का बदले में फिर से वी कैन राइट 2πn. नाउ द डिफरेंस इज दिस. नोटिस करके देखो, दोनों एक तरह से अलग है. कैसे, फ्रॉम वन एस्पेक्ट दे आर डिफरेंट. इंडक्टिव कैपेसिटेंस और n प्रोपोर्शनल है. दैट मीन्स more the
फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सर्किट, इंडिया में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यूएसए में फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। अब कोई मैं छोटा मोटा टॉय कार बना लिया, उसका फ्रीक्वेंसी सपोज 25 हर्ट्ज कर दिए, तो क्या देख रहे हो, वी कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी। सो इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, XL will go on increasing. Similarly, XC changes inversely with frequency. तो नोटिस करके देखो तो इफ वी वांट टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ दीज टू, ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी N और ये हो जाएगा XL. सो द ग्राफ वुड बी लाइक दिस. by proportional है, straight line passing through the origin हो गया. That means more the frequency 10 hertz, 20 hertz, 30 hertz, 40 hertz frequency अगर ज़्यादा कर दिए, it will offer more resistance to the circuit. That means XL would be more and more. Okay. लेकिन XC तो ऐसा नहीं है, XC तो उल्टा है. So ठीक है उल्टा है, but tell me what is the graphical nature if two things are inversely proportional? सीखे थे हम लोग. वेरी गुड, वेरी गुड. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स ये ऐसा होगा. पिक्चर भी याद रखो सो दैट इट हेल्प्स यू रिमेंबर. इंडक्टर लगा दिए ना, इसका तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से गुस्सा में आ जाएगा ये, इसका रेजिस्टेंस रिएक्टेंस बढ़ जाएगा. लेकिन कैपेसिटिव बेचारा शांत है, दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ये उल्टा काम करेगा. ये बोलेगा भाई साहब, करंट को बोलेगा भाई साहब आइए, दैट मीन्स इसका रिएक्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग. ओके, तो ये दोनों अगर स्टडी हो गया तो एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करते हैं जो कि हिस्टोरिक ग्राफ माना जाएगा आज से. कैसा? बिकॉज सम ऑफ यू मे बी स्टडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और एनीथिंग, मे बी रेडियोलॉजी लेकर मेडिकल में पढ़ने गए, मे बी यू रिक्वायर दीज थिंग्स. क्या एक ही ग्राफ में दो दो क्वांटिटीज ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी गिव इट अ कॉमा. बस XL, XC लिख दो y एक्सिस में, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ड्रॉ बोथ ऑफ देम. ये कॉमा है, हाँ? दोनों को ही हम लोग y एक्सिस में प्लॉट करेंगे. तो चलो एक को प्लॉट कर लेते हैं ऐसे. ये तो जानते हैं XL. XC का एक काम करता हूं मैं, क्योंकि आई हैव ऑप्शन ऑफ चूजिंग डिफरेंट कलर्स, so have you. ऐसे कर लिया तो ये होगा XC. तो इसमें और एक आदमी आ गया, वो बोला अब मैं आऊंगा. मैं, भाई साहब आप कौन है? बोला देखो मैं कौन होता हूं, मैं ये हूं. भाई ये कौन है? ये पॉइंट कौन सा है? दिस इज अ पॉइंट वेयर both reactance for the inductor, that is inductive reactance, and another reactance का नाम क्या है? Capacitive reactance. हाँ, these two become equal. देखो दोनों का हाइट सेम हो गया, that means यहाँ पे XL और XC they have become equal. तो y एक्सिस में तो दोनों का वैल्यू इक्वल हो गया. तो x एक्सिस का क्या? x एक्सिस represents what? Frequency. So the frequency, special frequency when these two capacitance become equal, एक कम होते होते जितना हुआ, एक दूसरा बढ़ते बढ़ते उतना ही हुआ, that frequency is called resonance frequency. frequency N, resonance के लिए R. Sometimes in some books this is written as N naught, मैंने कोई स्पेशल एक नाम दे दिए N naught, या तो N resonance frequency. और क्वेश्चन ये आता है, फाइंड दिस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? व्हाट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? जबकि ऐसा होगा, क्या होगा? XL इक्वल्स टू XC. लिख रहा हूं मैं, नीचे तुम लोग लिखो XL इक्वल्स टू XC, लिखो नीचे XL इक्वल्स टू XC, और लिखना ये एट रेजोनेंस. क्या होगा? XL इक्वल्स टू, चलो वैल्यू पुट करते हैं, L ओमेगा 1/C ओमेगा. भाई ओमेगा स्क्वायर हो गया ये दोनों, देखो ओमेगा स्क्वायर, और उधर 1/C तो था ही, L भी साथ में जुड़ गया. सो ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 1/LC, एंड फ्रॉम दैट
ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ओमेगा इक्वल्स टू 1/√LC. एंड इफ समवन वांट्स टू फाइंड फ्रीक्वेंसी, ओमेगा तो रेडियन पर सेकेंड होता है, इसको भी फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, जानते हो. ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. कौन सा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. यस, ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी इन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक्स. हाँ, नाम थोड़ा स्टाइलिश हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बाकी अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी का साथ मुलाकात करना पड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा? ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. मे बी दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट. मैंने इसलिए बोल रहा हूं अप टू 12, उसका बाद से यही काम आएगा ज्यादा. तो एनीवे, सो n इक्वल्स टू 1/2π 1/√LC. ऐसा क्यों? बिकॉज ओमेगा इक्वल्स टू 2πn, ओमेगा इक्वल्स टू 2πn. सो n इक्वल्स टू 2π तो नीचे चला जाएगा ना उस साइड का. So 2πn equals to 1/√LC, n equals to 1/2π 1/√LC. So resonance होता है तब जबकि दोनों का reactances become equal. और उसका फॉर्मूला क्या? ऐसा. एक साम बनाते चलो. there is a capacitor जिसका कैपेसिटेंस है 1 NF and there is an inductor जिसका सेल्फ इंडक्टेंस है 1 mH. ना मैं बोलूंगा नहीं क्या है, ऐसे लिख दिया बस, जैसा बुक में रहेगा क्वेश्चन में रहेगा ऐसे. सो व्हाट वुड बी, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज NR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा? बताओ तो, कौन बताता है आंसर पहले? देखता हूं मैं. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 10⁻6 divided by 2π. Right answer. Because it would be 1/2π 1/√LC. L is 1 millihenry. Milli मतलब 10⁻³ and Henry we know it is the SI unit of self inductance. So millihenry को Henry बना दो and then into, then comes this thing, capacitance. When nanofarad, याद करो, nano means 10⁻⁹. So nanofarad अगर है तो it would be 1 into 10⁻⁹ farad. नैनो फैराड को फैराड बना दिया, नैनो मीन्स 10⁻⁹. ये कितना हो गया? देखो नीचे तो 1/2π है, बाकी ये रूट ओवर का अंदर 10⁻⁻12 आ गया, -3 -9. और अगर -12 आ गया उसका रूट ओवर करेंगे तो 10⁻6 होगा, और वो अगर ऊपर उठ जाएगा तो इट विल बिकम 10⁻+6. यस, सो इतना हर्ट्ज होगा, आंसर होगा हर्ट्ज. बट यूनिट का बाद ना डॉट बैठता है ना कुछ बैठता है, वो सब मत देना. हाँ, वो तो मैं ऐसे दे दिया. एनीवे, सो 10⁻6/2π दिस मच हर्ट्ज वुड बी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. वे किसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंडिंग दिस? इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स अगर रेजोनेंस हुआ, आइडिया 1 रेजिस्टेंस बिकम्स मिनिमम, आइडिया 2 द करंट बिकम्स मैक्सिमम, आइडिया 3 if current becomes maximum then the output that you want to have, क्या टीवी देख रहे हैं, आउटपुट क्या चाहिए? साउंड क्लियर, पिक्चर क्लियर. वो तो तब क्लियर होगा जब द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट इज मैक्सिमम. सो दैट इज द रेजोनेंस. और वहां पे यू हैव लर्न, मे बी कंप्यूटर में मॉडेम पढ़े हो, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन. सो दे कैन कैप्चर अ सिग्नल द बेस्ट वे व्हेन दैट इज सेट एट रेजोनेंस. तो कोई भी सिग्नल को बहुत इजीली और ब्राइटली कैच करेगा. कब? जब रेजोनेंस में रहेगा. अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का साइड में कोई फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी है,
तो तब क्या होगा, कैच तो करेगा, यू विल सी अ वीडियो, यू विल हियर एन ऑडियो, बट उसका इंटेंसिटी उतना क्लियर, उतना ब्राइट नहीं होगा. जस्ट लाइक यू सेट टू FM channels, सेम थिंग, दोज वैल्यूज रिप्रेजेंट व्हाट. कोई एक चैनल का बताओ ना, 93.7, मुझे उतना याद नहीं, वो क्या है 93.7 मेगाहर्ट्ज. एंड व्हाट डज दैट स्टैंड फॉर, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. ताकि उस पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन का फ्रीक्वेंसी, दैट इज साउंड, तुमको सुनाई दे क्लियरली विदाउट नॉइज. दैट इज रेजोनेंस. वो है कारण कि व्हाई वी वांट रेजोनेटिंग सर्किट. अब ये रेजोनेंस मिलता कैसे है, लेट अस सी दैट. तो लेट अस बी बैक यहां पे देखो, ये जो वोल्टेज मिला था ना हम लोगों को रिजल्टेंट, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. कौन सा, ये बहुत काम का चीज है ये, ठीक है. नाउ लेट अस बी बैक टू दैट पेज दैट वी हैड लेफ्ट. इसमें वापस आ जाते हैं. E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी. ठीक है, चलो इसमें आ जाओ, वो जो पेज छोड़ने बोले थे. नाउ द वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, इसको लिखो EL. अब सब मैच करने लगेगा, अच्छा लगेगा. अब रिटर्न टाइम, वो तो इन्वेस्टमेंट टाइम था, यू इन्वेस्टेड योर टाइम एंड पेशेंस. अब रिटर्न मिलेगा. ये कौन है, कैपेसिटर C है, उसका दोनों एंड का वोल्टेज भाई EC लिख देंगे, काम चल जाएगा. ये कौन है, रेजिस्टेंस. सो इफ वी राइट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट E सफिक्स R, काम चल जाएगा. हो गया तीनों, हो गया तीनों, ये तीनों. अब ये तीनों सीरीज में है, इससे ये बोल सकते हैं कि ऑल द थ्री विल कंडक्ट. ठीक से समझो अब, हाँ, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पार्ट. कैन वी से दैट ऑल द थ्री विल कंडक्ट same current through them because they are connected in series? Yes, series में current same होता है. Okay, current अगर तीनों में same होता है तो can we say that voltage कोई भी तरह का होगा तो current into resistance sort of thing. मतलब ये समझ में नहीं आया. sort of thing माने ऐसा है, दिखा रहा हूं. resistive EMF कैसे लिखते हैं, वोल्टेज रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना होता है, I इंटू R. ये कौन बोल के गए थे, ओम. अरे ओम को नाम से मत बुलाओ, बहुत सीनियर है तुमसे. ओम दा, ओम चाचा, कुछ भी बोलो. एनीवे, सो इट इज ER इक्वल्स टू I इंटू R. तो EL कितना हो जाएगा, कोई बोलेगा EL. व्हाट वुड बी द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, I इंटू R. Yes, so we will write that like this, I into R. मैं थोड़ा देर पहले बोला था कि इंडक्टर का दोनों एंड में जो रेजिस्टेंस वो ऑफर करता है उसको क्या नाम दिए थे, एक स्पेशल नाम दिए थे आज, रेजिस्टेंस ना. वेरी गुड. इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंस माने X और इंडक्टिव माने L. अच्छा, इतना इजी है, ऐसे करके लिख देंगे. IR ना लिखा I इंटू एक्सएल. यस, इतना इजी है, सिंपल हो जाएगा. अच्छा बताओ, EC कैपेसिटर का दोनों एंड का वोल्टेज कैसे लिखेंगे, EC करंट I इंटू X C. यस यस, बस हो गया, इतना इजी है. तो मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम करंट विल पास थ्रू ऑल द थ्री. यस, तो कैन वी से कि वोल्टेज तो भाई उसका ज्यादा होगा जिसका ये रेजिस्टेंस पार्ट ज्यादा है, वोल्टेज तो उसका ज्यादा होगा जिसका ये रेजिस्टेंस पार्ट ज्यादा है, वोल्टेज उसका ज्यादा होगा जिसका ये रेजिस्टेंस पार्ट ज्यादा है. दैट मींस वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. जो ज्यादा रेजिस्टेंस देगा भाई उसका अक्रॉस में वोल्टेज उतना ज्यादा. सो कैन वी ड्रॉ नाउ दिस थिंग, जो पेज छोड़ के रखे थे ना वहां पे. चलो अब इसका नीचे कैसे, इसको सिर्फ दिमाग में रखो कि वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है. तो मैं ये लिख दिया, देखो मैं फिर से एक बार यहां पे लिखता हूं. ये तो ER था, मैं उसको सिर्फ R लिखा. ये तो EL माइनस EC था, मैं इसको सिर्फ XL माइनस XC लिखा. ये तो रिजल्टेंट वोल्टेज E था,
मैं उसको रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सॉर्ट ऑफ थिंग Z लिखूंगा। क्या लिख रहा हूं उसमें बाद में जाते हैं, पहले क्यों लिख रहा हूं वो सोचो। क्या लिख रहा हूं बाद में, पहले क्या क्यों लिख रहा हूं वो सोचो। वोल्टेज 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 का रेशियो जो होगा, रेजिस्टेंस 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 का रेशियो सेम होना चाहिए। क्या गारंटी है? अब भी तो देखे, ये अब भी तो देखे, मोर द रेजिस्टेंस पार्ट मोर द वोल्टेज पार्ट। तो वोल्टेज इज टू वोल्टेज इज टू वोल्टेज, तीनों साइड का ट्रायंगल का अगर रेशियो ले लूं यही आएगा ना, रेजिस्टेंस इज टू रिएक्टेंस इज टू रिएक्टेंस। अब बताओ, इसका वोल्टेज तो EL माइनस EC था, तो इसका नेट रिएक्टेंस कितना होगा? XL माइनस XC। इसका तो वोल्टेज था ER, इसका करंट को कैंसिल कर दो तो क्या बचेगा? R। इसका करंट को कैंसिल कर दो क्या बचेगा? I इंटू XL माइनस XC। तो I को कैंसिल कर दो, XL माइनस XC। So this is called voltage triangle. This is called no, जो सोच रहे हो वो नहीं होगा, ऐसे लिखो, impedance triangle. This is called impedance triangle. Impedance मतलब, impedance का मतलब net by resultant resistance of the circuit. कहां पे? AC में ऑल्टरनेटिंग करंट, वहां पे नेट रेजिस्टेंस का नाम दे देंगे। जैसे हम लोग बोलते थे नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, याद है? R इक्विवेलेंट। वैसे यहां पे R इक्विवेलेंट ना बोल के, कोई R है, कोई X है, कोई XL है, कोई XC है, उसलिए उसको रेजिस्टेंस और नहीं बोलते, मिक्सचर ऑफ रेजिस्टेंसेस को क्या बोलेंगे? नेट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस। और उसका सिंबल ये है Z। Z माने आज से होगा नेट रेजिस्टेंस Z। और वो Z का वैल्यू निकालना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही आसान है। कैसे? Z इक्वल्स टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करेंगे, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखे, जितना न्यूमेरिकल्स बनेगा इस चैप्टर से उसका 70% न्यूमेरिकल सिर्फ इसी से बनेगा। 70% ऑफ द न्यूमेरिकल सिर्फ इसी से। इंपीडेंस ऑफ अ सर्किट इलेक्ट्रिकल, जिसमें कौन कौन है? जिसमें रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है, इंडक्टर है, सब मिला के जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो होगा रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। समझ में ये चीज नहीं आ रहा है? भाई ऐड क्यों कर नहीं दिए? है तो रेजिस्टेंस माने करंट को रोकेगा, तो तीनों मिलकर रोकेगा, तो तीनों को ऐड कर दिया, खत्म बात। नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्या स्क्वायर वायर करना पड़ा? हाँ, ट्राइंगल से यही मिल रहा है, बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज दिस थिंग। ऐसा क्यों किए? द आइडिया इज दिस थिंग। इसी पेज में नीचे चलते चलो, मैं एक पेज छोड़ने बोला था, नीचे चलो। एक छोटा करके सर्किट ड्रॉ करो, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक कैपेसिटर एंड ये एक इंडक्टर, बस ये छोटा सा सर्किट, ये छोटा सा सर्किट ऐसे ड्रॉ करो और ना ऐसे राइट द वैल्यूज, राइट द वैल्यूज। देखो साम बनाओगे आइडिया क्लियर होगा। ये एक छोटा सा साम है, ये सिंपल है। ये है 10 वोल्ट, suppose this is 20 volt and this is 40 volt. These points are P and Q. What is the potential difference between P and Q? कितना potential difference होगा P और Q का बीच में? What will be the potential difference between P and Q? कितना वोल्ट? मुंह में तो आ गया आंसर, लेकिन बोलने में हिम्मत नहीं हो रहा है कि ये सबको जोड़ के तो होता है ऐसे 30 प्लस 40 70 वोल्ट, बट वी कैन नॉट से दैट। क्यों? कितना होगा आंसर?
70 वोल्ट, अच्छा बोल नहीं डाले, ओके, सो नाइस ऑफ यू, अच्छा ठीक है, बट द आंसर वुड नॉट बी 70 वोल्ट। इसीलिए तो ये साम दिए सीखने के लिए। कैसे? इसको याद करो, इसको याद करो और देखो मैं कैसे अप्लाई करता हूं इसको। ये कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, फिर भी किए। 10√5 वोल्ट इज द आंसर। अरे इतना वोल्टेज दिए, इतना कम आ गया आंसर, 10√5 वोल्ट ओनली, बट वी अप्लाइड सो मच ऑफ वोल्टेज अक्रॉस। देखो इंडक्टर में कितना आशा था इसके ऊपर कि भाई 40 वोल्ट दे रहे हैं, कुछ करेगा लाइफ में। इसको देखो, उसी का दोस्त है, 20 वोल्ट दिए। हाँ, रेजिस्टेंस का वोल्टेज थोड़ा कम था, मान रहा हूं मैं, 10 है। बाकी इसका दोस्त लोगों का देखो, बाकी ये आंसर इतना कम, 10√5, आंसर इतना कम आ गया। स्टोरी सुनो, बड़ा भाई, मझला भाई, छोटा भाई, इनका सैलरी 2 लाख रुपीज है पर मंथ। इनका सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, और इनका सैलरी है 50,000, दैट मीन्स 0.5 लाख रुपीज पर मंथ। इनको सैलरी मिलता है महीने का फर्स्ट डे को ही सैलरी मिल जाता है। इनको सैलरी मिलता है 7th इंस्टेंट को महीने का, और इसको सैलरी मिलते मिलते 10 तारीख हो जाता है। अब मैं ये पूछ लिया, मान लो स्टोरी ऐसा है कि द 3 ब्रदर्स आर वेरी यंग, जितना भी सैलरी मिलता है सब खर्चा कर देता है उसी महीने में। नाउ द मंथ स्टार्ट्स, अ न्यू मंथ स्टार्टेड, और आज ना तारीख है, मान लो 3rd इंस्टेंट। तो बोलो तो ये फैमिली, जो तीनों भाइयों का है फैमिली, उसमें कितना पैसा इनपुट हुआ है? 3rd है, आज महीने का 3rd है, कितना पैसा आया है ये फैमिली का पास? तीनों का जोड़ के बोलो। हाँ, 3rd इंस्टेंट है, आज महीने का 3 तारीख है। इनको सैलरी मिला? हाँ मिला। कितना? 2 लाख। इनको सैलरी मिला? नहीं मिला है, आज तो 3 तारीख है। इनको 7th को मिलेगा, थोड़ा देर बाद। इनको मिला है? कोई सवाल ही नहीं है, 10th को मिलता है। तो एट 3rd इंस्टेंट ऑफ अ मंथ, आज अगर 3 तारीख है, सिर्फ इनको सैलरी मिला है। लेकिन हम लोग ऐसे सोचते हैं दूर से, देखो फैमिली कितना बड़ा है, तीनों कमाता है, और तीनों का तो 3.5 लाख रुपीज सैलरी होना चाहिए। तो आज 3 तारीख को 3.7 लाख होगा, आई मीन 3.5 लाख नहीं होगा। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, द इंस्टेंट एट विच, हाँ तीनों को सैलरी जब मिल जाएगा देन यू कैन काउंट दैट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेम टाइम में नहीं हुआ। ये तीनों वैल्यूज डिड नॉट ऑकर एट द सेम टाइम सो दैट वी कैन ऐड देम टुगेदर। सेम थिंग यहां पे भी हुआ। ओके, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 10 वोल्ट होता है, तो करंट का साथ सेम फेज में रहता है। करंट का साथ माने जब करंट मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम, कितना? 10 वोल्ट। लेकिन जब करंट मैक्सिमम, तब ना कैपेसिटर का वोल्टेज 90 डिग्री लैग करता है, नीचे रहता है 90 डिग्री कैपेसिटिव वोल्टेज। याद है, ईसी नीचे हुआ था। दैट मीन्स अभी भी 90 डिग्री फेज डिफरेंस होगा, उसका बाद जाके इसका ये वैल्यू मिलेगा। सिमिलरली इंडक्टिव वोल्टेज, वो तो और स्मार्ट है, करंट से पहले ही वो मैक्सिमम हो चुका है। दैट मीन्स वो भी इसका साथ सेम रिदम में नहीं जा रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम फेज में है करंट का साथ।
कैपेसिटी वोल्टेज इससे 90 डिग्री बाद होगा, इंडक्टिव वोल्टेज इससे पहले ही हो चुका है 90 डिग्री पहले, तो तीनों एक साथ ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है। हालांकि वैल्यूज ऑफ दिस मच क्वांटिटी इतना ही है, पर सेम टाइम में नहीं हो रहा है। जो मैं स्टोरी बताया अभी तीनों भाइयों का, तो ये भी तीन भाई है, ये तीनों का भी वोल्टेज एक साथ इतना वोल्ट इतना वोल्ट इतना वोल्ट नहीं हो रहा है। किसका डिफरेंस हो रहा है? फेज का डिफरेंस हो रहा है। मान लो केरला में अभी मानसून आया हुआ है, तो क्या कोलकाता में मानसून आया हुआ है? नहीं है, टाइम लगेगा थोड़ा। तो सिमिलरली इसको भी फेज का हिसाब से π/2 टाइम लगता है। इसका रिस्पेक्ट में इंडक्टर बहुत स्मार्ट है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस पहले मैक्सिमम हो चुका है, दैट इज 40 वोल्ट, और ये अभी भी π/2 बाद होगा 20 वोल्ट। तो अब कितना है एट एनी प्रेजेंट मोमेंट? इतना है भाई साहब, इतना है। कितना? दिस इज द वैल्यू। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट why they have not been added together to simply get the value as this plus that like DC. AC में phase difference होता है, and that's why from the very beginning first page I have been telling you about phase difference. कौन lead कर रहा है, कौन lag, सेम फेज में नहीं होता ये। तो फेज डिफरेंस को हिसाब में लेके हम लोगों का एग्जाम हॉल में ये तीन भाइयों का स्टोरी पढ़ के थोड़ी साम बनाएंगे, तो उसमें क्या करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला, दैट इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, और वो फॉर्मूला ये है। एंड फॉर दैट रीजन, क्योंकि सब सेम फेज में नहीं होता है, ये एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सिर्फ स्टोरी मत समझो, दिस इज अ न्यूमेरिकल फॉर योर बोर्ड्स, मेंस और नीट, तीनों के लिए। ये सिर्फ स्टोरी से मैं समझाया, दिस इज अ न्यूमेरिकल, समझे? मतलब वोल्टेज का अगर ऐसा होता है तो देखो, तो हम लोग क्या कर रहे थे? रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का भी ऐसा ही होगा। कैसा? सेम वैल्यू, देख रहे हो? Z इक्वल्स टू कितना? √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि तीनों सेम फेज में नहीं है। एनीवे, नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इतना हुआ, √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड इंपीडेंस ट्रायंगल। ये ट्रायंगल जहां से ये फॉर्मूला मिला, इसका नाम क्या था? इंपीडेंस ट्रायंगल। इसमें और एक चीज करो, ये एंगल को फाई लिखो, एंड फ्रॉम इंपीडेंस ट्रायंगल देयर आर, एटलीस्ट इसको सीखो, क्या? cos फाई। क्यों भाई ये ऐसा क्यों है? बाकी इंडस्ट्री में जाओगे ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या तो मैकेनिकल से भी जा सकते हो, सर्किट का cos फाई 1 रखना है। एक इंजीनियर का क्या ये टास्क हो सकता है, और इसीलिए 1 लाख रुपीस पर मंथ देगा उसको कंपनी? यस, यही एक काम हो सकता है इंजीनियर का, कि भाई सर्किट जो है ना, पैनल बोर्ड को नोटिस करो, ऐसा डिजाइन बनाओ पैनल बोर्ड का पूरा फैक्ट्री में कि पावर फैक्टर मुझे 1 का आसपास चाहिए, 0.98, 0.99, 0.96 ऐसा रखो। उससे कम हो गया ना पावर फैक्टर, तुम्हारा सैलरी से काट लूंगा मैं। प्रैक्टिकल केसेस बोल रहा हूं, आई हैव सीन इट इन इंडस्ट्री। तो cos फाई का नाम मैं अनजाने में क्या बोल दिया? अभी बोल दिया मैं। कैन यू टेल मी मैं क्या बोल दिया अभी cos फाई का नाम? अरे वाह, वेरी गुड। पावर फैक्टर लिखो। क्यों पावर फैक्टर? ऐसा क्या है cos फाई? अच्छा पहले वैल्यू तो निकालते हैं। cos फाई फ्रॉम दिस ट्राइंगल देखो कितना आ रहा है। बेस R, हाइपोटेन्यूज Z, अगर इसको 1 का आसपास होना है तो कैसे हो सकता है? ऐसे। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्या लिखो? एट रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होगा ये सीखे थे हम लोग। हाँ जाचिए, I'll show you PDFs, don't worry. Write at resonance XL equals to XC. That means impedance Z is given by √over, क्या फॉर्मूला था? फॉर्मूला क्या था? याद नहीं आ रहा, बोलो तो क्या था? R² R²।
एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मैं आर लिख दिया, कुछ भूल हो गया क्या इसमें? भूल लिख दिया, आर लिख दिया मैं इसका बदले में, ये कैसे हो गया? ये तो जीरो हो गया, ऑपोजिट फेज में आ गया। ऑपोजिट फेज में एक 90 डिग्री ऊपर एक 90 डिग्री नीचे, एक दूसरे को टान के जीरो बना दिया जो, उसलिए आर हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? z इक्वल्स टू आर, यही इसका मिनिमम वैल्यू है। क्यों? क्योंकि रूट ओवर का अंदर झांको, लुक इनसाइड दिस, दिस इज आर स्क्वायर प्लस समथिंग। अब वो समथिंग वाला पार्ट अगर जीरो हो गया तो यही तो इसका मिनिमम वैल्यू है आर, समथिंग वाला पार्ट नहीं रहा। दैट मीन्स नथिंग इज गोइंग टू बी एडेड टू आर, दैट मीन्स इट इज द मिनिमम वैल्यू, रूट ओवर आर स्क्वायर सिर्फ, दैट इज मिनिमम इंपीडेंस। इंपीडेंस का भी यूनिट क्या होगा? ओम होगा। ओम ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस ही तो है, सिर्फ नाम अलग है। मतलब मिनिमम रेजिस्टेंस होता है एट रेजोनेंस। तो एक चीज बता दे रहा हूं, बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। देखो क्या बोलने जा रहा हूं मैं, देखो ओम्स लॉ जो होता है ना, V इक्वल्स टू आई आर, वही होगा यहां पे, ओम्स लॉ ही होगा, सिर्फ कलर चेंज करके आई एम अप्लाइंग सम सफिक्स हियर, और वो है ये V माने कौन सा वैल्यू? वी हैव लर्नड अबाउट 3 वैल्यूज ऑफ V। कौन सा? V नॉट। ओ 4 फिंगर हो गया ना, 3, हाँ 3 वैल्यूज ऑफ V। कौन सा? V नॉट। इसका नाम क्या था? पीक वैल्यू। V नॉट माने E नॉट, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। V एवरेज वो कितना हुआ था? 2/π टाइम्स V नॉट। V RMS वो क्या था? V नॉट बाय √2। मैं लिख देता हूं यहां पे, देखो एक तो हुआ V नॉट या तो E नॉट, इसको क्या बोलेंगे? अच्छा चलो E नॉट ही लिखता हूं मैं, अगर V नॉट से परेशानी है E नॉट भी लिख सकते हो। एक हो गया E नॉट, इसका मतलब है पीक वैल्यू। और एक स्टाइलिश टर्म बता दे रहा हूं, SHM में बोला था मैं, एम्पलीट्यूड का क्या माना था? एम्पलीट्यूड SHM में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनीथिंग। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मींस डिस्प्लेसमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। मैं अगर बोल दूंगा करंट एम्पलीट्यूड कितना, इसका माने क्या? करंट का मैक्सिमम वैल्यू। अगर मैं बोलूंगा वोल्टेज एम्पलीट्यूड, तो व्हाट डू आई मीन टू से? वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू, दैट मीन्स पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो नाम क्या बताया? वोल्टेज एम्पलीट्यूड, उसका माने पीक वैल्यू। दूसरा ई एवरेज वैल्यू कितना होगा? पीक वैल्यू इनटू कौन सा फैक्टर? 2/π। लिखो लिखो, बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। और थर्ड RMS वैल्यू, ERMS, ये कितना हो जाएगा? E नॉट का कितना टाइम्स? भाई डिवाइडेड बाय √2, डिवाइडेड बाय √2। These are the 3 values we would be dealing with nearly all the time. सिर्फ एक शॉर्टकट बता के रखता हूं क्या? 1/√2। मोर ऑफन यू फाइंड दिस वैल्यू कि 5/√2 आ गया तो छोड़ के आ जाएंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन डेसिमल में दिया हुआ है, तो फाइंड करेंगे √2 का वैल्यू से। वेरी गुड। 0 पॉइंट मैं बोला था एक बार पहले तुम लोगों को कि लाकी नंबर बोलो, तो कोई 7 बोल दिया था तो मैं ऐसे लिख दिया था, बाकी ऐसे ही होगा। कितना? 0.707। रिमेंबर दैट, 1/√2 हेल्प करेगा तुमको कैलकुलेशन इजी बनाने में। एनीवे वो कहां पे आएगा? RMS वैल्यू में। क्यों? RMS वैल्यू कितना होता है? E नॉट बाय √2। तो मैं क्या बोलने जा रहा था, यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ इजीली। जो सीखे हो इन करंट इलेक्ट्रिसिटी वही अप्लाई कर देना। सिर्फ ये 2 वैल्यूज है ना, ये 2 वैल्यू कौन? विक्ट्री साइन किसका? वोल्टेज एंड करंट। इसका व्हिच वैल्यू टू कंसीडर? RMS। सो VRMS इक्वल्स टू IRMS इनटू Z। अच्छा यहां पे पावर का फॉर्मूला चलेगा क्या? पावर वी लर्नड इन द लास्ट क्लास, पावर P इक्वल्स टू भाई, चलेगा पावर का फॉर्मूला? वो सब फॉर्मूला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में किए, यस चलेगा। कैसे? सिर्फ ये करना। कैसे? नेक्स्ट पेज लिखो, पावर
INST का मतलब है इंस्टैंटेनियस वैल्यू, कोई एक सर्टेन टाइम में पावर का वैल्यू कितना होगा। INST वो कितना होगा भाई, V इंटू आई। नाउ यू कैन ऑलवेज राइट E, आई हैव बीन टेलिंग यू, V का बदले में E भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, तुमको जो ठीक लगे। V इंटू आई भाई, सिर्फ V का RMS वैल्यू, I का RMS वैल्यू ऐसा करके लिखना है, इनटू cos फाई, ये cos फाई आ जाएगा। और क्योंकि cos फाई पावर का वैल्यू में आता, ये इंस्टेंटेनियस मत लिखना, तो एक काम करो, तो इसको चेंज कर दो, इसको लिखना एवरेज वैल्यू, पावर का एवरेज वैल्यू इतना होगा। क्या भाई होगा V इंटू आई, और V आई सबको कौन सा वैल्यू लेंगे, RMS, वोल्टेज और करंट दोनों का ही RMS वैल्यू लेना, सिर्फ उसका साथ है cos फाई कर देना, क्योंकि cos फाई का नाम क्या बोले थे, पावर फैक्टर। नो आई एम नॉट कन्विंस्ड, ऐसे आप बोल देंगे मैं याद रख दूंगा क्या, फिजिक्स याद रखने वाला सब्जेक्ट है क्या? ओके कोई बात नहीं, चलो ऐसे करो, लिखो पावर इंस्टैंटेनियस INST इक्वल्स टू, ठीक है मैं भाई बोला था तो वोल्टेज इंटू करंट, चलो वही करते हैं, वोल्टेज को E लिखता हूं, अच्छा चलो V लिखता हूं, इंटू करंट लिख दिया मैं। चलो बताओ वोल्टेज क्या लिए थे हम लोग, E नॉट साइन ओमेगा टी, दैट मीन्स V नॉट साइन ओमेगा टी। करंट को क्या लिए थे, I नॉट, करंट का वैल्यू क्या अप्लाई किया था, I नॉट साइन ओमेगा टी। अरे अब तो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों? इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि रेजिस्टर वाला सर्किट प्योरली अगर था तो था +0 डिग्री इसका साथ फेज डिफरेंस, तो ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी। पर अगर इंडक्टिव था तो इंडक्टिव में वोल्टेज लीड कर रहा था, हाँ वोल्टेज वाज लीडिंग, सो करंट वाज लैगिंग। और अगर कैपेसिटिव था वहां पे तो वोल्टेज मुंह मोड़ लिया था, नीचे हो गया था, वोल्टेज वाज लैगिंग, करंट वाज लीडिंग। तो अब इसको लेके प्रॉब्लम हो रहा है, यहां पे 0 लिखूं प्लस, कि +π/2 लिखूं कि -π/2 लिखूं, वी आर नॉट श्योर। तो भाई जनरल लिख देता हूं +φ। अब फाई अगर 0 है तो प्योरली रेजिस्टिव, फाई अगर +π/2 है, -π/2 है, कैपेसिटिव इंडक्टिव हो जाएगा। तो जो होता है होने दो, पहले फाई लिख लो, ओके। अब ये जो हुआ ना P = फाई, देखो V नॉट माने पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, I नॉट माने पीक वैल्यू ऑफ करंट, और बाकी ये कौन हो गया, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब क्या करूं, ये तो इंस्टैंटेनियस वैल्यू है, माने द वैल्यू व्हेन टाइम बिकेम t, ये देखो t है, ये देखो t है, मतलब t टाइम पे इतना पावर, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि भाई ये मशीन लेके रख दिया, ये एसी का साथ कनेक्ट कर दिया, बताओ इसका पावर कितना है। सो वी मीन टू से एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। बट ये फॉर्मूला हम लोगों को देगा कि t सेकंड में कोई एक टाइम में, 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड में कितना पावर था। तो हम लोग को वो नहीं चाहिए, एवरेज चाहिए, जो कि इतना आने वाला है, इतना आने वाला है। हाउ टू फाइंड दैट, एक काम करता हूं ना, P इंस्टेंटेनियस इतना है तो इसी को थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, हाफ से मल्टीप्लाई, भाई भूल कर दिए, ठीक है सुधार देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, अब तो ठीक हो गया ना, सामने हाफ इंटू 2। बताओ ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला नहीं हो गया, 2 साइन ए साइन बी। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू का एवरेज निकालूं या तो इंटीग्रेट कर दूं तो एवरेज आ जाएगा, कैसे, P एवरेज, कल मैं आइडिया सिखाया था, हाउ टू फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ एनीथिंग, वेलोसिटी से लेके पावर से लेके कोई भी चीज का मैं सिखाया था, इंटीग्रेशन P dt बाय इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन P dt बाय इंटीग्रेशन dt, ये कर दूंगा, ठीक है, ओवर अ कंप्लीट पीरियड, कितना, 0 to t, 0 to t,